सर आप म्यूट हो। Okay, I was just waiting for the music to end, but now that the music has ended, so probably we can now start. This can be more or less called as the second innings, because in the first part we had the coverage right up to rotation, some part of it, and then we had half yearlies. तो अगर थोड़ा सा philosophically देखा जाए तो देखते देखते समय निकल जा रहा है. Because see, after all, you will be having more or less 4 half yearlies. I mean, if I let's say look at the first year, and if I consider as 2 half yearlies, and then let's say the second year, that is 12, again 2 half yearlies. So that would sum up to around 4 half yearlies. So 4 में से एक over है. So I think it would be good time to evaluate what has happened exactly, and also what probably went right, what probably went a little wrong, and then maybe based on that evaluation, you should all make the future chart of planning and progress, so that if there are any cobwebs of doubts कि पता नहीं शायद first half में मैंने इतना अच्छे से pace up नहीं किया, if those are the thoughts that are coming up, then I would surely say that make plans so that those thoughts do not come in the next phase. Fine. Honestly speaking, well, there are some messages also. Can I go through them once quickly? Okay, good morning messages from Bhavya, Rishabh, Arnav, Dhruv Gupta, Shreyashi, Rishabh Jain, Arshit. The Rishabh has just asked, वापस स्कूल में बिल्कुल. Krishna, good morning. Arnav says कि पहली बार मैं रात के 1 बजे से पहले सोया. अच्छा, पहली बार. चलो ठीक है, not bad. Okay, good morning after a long time is Dev Tiwati's message. Rajshekar. Arnav says papers में धोखा हो गया. क्यों papers में क्यों क्या धोखा हो गया? Okay, Aditya Madhu says कि एक दिन का तो छुट्टी दे देते. This is always that thoughts have been कि एक दिन का छुट्टी हो जाए. But अगर देखा जाए तो तुम लोगों के lifestyle ही बहुत relaxed है. If I let's say compare with the other years, so everybody used to wake up early morning and then dress up, wait for the school bus, come here, lot of activities. And you all have been, fortunately or unfortunately, I don't know, absorbed of all those activities. So like, I'm sure many of you simply wake up and just maybe brush and then switch on the camera. This is what I feel. I don't know. Sir, no brush. Krish Nagar has just, as usual, said कि कब स्कूल खुलेंगे? Well, that even I don't know. So like, let's say, पहले तो मुझे भी लग रहा था कि शायद अब खुलने वाला है. But as I said, that it's not yet so sure now. Garv Makkar as usual in his freestyle. Sir, free period. अब इतने तो free period मिल चुका, अब कितने और चाहिए? अब वैसे वो ज़्यादा अच्छा है इससे. Yeah, actually the grass is always greener on the other side. So let's wait for the school to reopen and let's see whether the opinions remain the same or not. So anyway, I think we were discussing on rotation, and I think probably we can continue from there only. So has asked कि आपने क्या papers check कर दिया? Not right now, but then we'll get it soon, maybe by Monday. So that's what I feel. I mean, other subjects are also like happening parallelly. Chalo, I think we were discussing on rotation, and we had discussed a lot about this Tao Zero Isn't it? I think probably that's where we will begin today also. तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, relatively easy one, so that we can get along after that. Okay, the question is to an extent similar to what we have done earlier, nothing very greatly different. तो थोड़ा सा warm up भी हो जाएगा, and then we will move on to slightly different type of cases. ठीक है? चलो, so the question is like this. Of course, मुझे setting वाला सोचना पड़ेगा.
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है ना। और वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे समझ, ठीक है। आई होप, ठीक है। और ये पुल किया जा रहा है तो लाइक दैट्स हाउ द थ्रेड, ये जो थ्रेड है ये वाला थ्रेड, ठीक है ना। ऑल आर masses m, all are masses m, and in this the handles are negligible mass, the handles are masses, यानी ये एक डिस्क है समझ लो, या सॉलिड सिलेंडर है ऑफ रेडियस 2r एंड ऑफ मास m, और इसके r रेडियस पे थ्रेड ऐसे करके वाइंड किया गया। ओ सॉरी, एट द बॉटम, ये थोड़ा डायग्राम गलत हुआ है, डायग्राम थोड़ा गलत, यहां से डायग्राम, इसके पहले डायग्राम में थोड़ा एरर था क्योंकि मैंने यहाँ पे तो किया नीचे से और यहाँ पे मैंने ऊपर से कर दिया था, तो वो गलती थी। अब मैंने ठीक कर दिया, ये नीचे से आ रहा है और ये भी नीचे से जा रहा है। यू टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाट यू डू, ठीक है। क्विकली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ध्रुव गुप्ता से कि वीडियो अटक रहा है, ज्यादा अटक रहा है क्या? चलो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट। ये भी ध्यान रखना, एक डिस्क है और एक मास m और रेडियस r है, यानी वो भी घूम रहा है। So this time the pulley is also rotating, movable pulley kind of, movable only in terms of rotation. तो इसके सबसे पहले तो T1 T2 and we are taking pure rolling with sufficient friction. We are taking no slipping case. No slipping anywhere. That is the prima facie case. उसके लिए एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, and that is इस केस में find out the minimum friction coefficient required here. The question is find out the minimum coefficient of friction required here. That is also a feasible question, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन यहाँ पे भी हो सकता है, what is the minimum coefficient of friction out here. तो और भी additional questions possible है, तो पहले acceleration निकाल लेते हैं. I think after that we can go through the other ones. Okay, ध्रुव says कि थोड़ा सा बीच में अटक गया था, but बिल्कुल अब ठीक। चलो let's see how is the progress. तो पहले इसका शुरू करें, ठीक है। तो अगर इसका ड्रॉ करता हूँ इक्वेशन, तो यानी हो जाएगा mg minus t1 is equal to m, और इसका क्या हो जाएगा t1 minus t2 into r is equal to mr square by 2 into a by r। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इतना तो तुम लोग अभी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं इसका, क्योंकि यही असली, अगर कुछ भी इश्यू है या नया है, नया भी नहीं कहूंगा, मतलब अगर कुछ टेस्टिंग है तो वो इस बात पे हो रहा है कि यहाँ का एनालिसिस तुम ठीक से कर पा रहे हो नहीं कर। एक सवाल का जवाब मुझे दे दो, एक सवाल का जवाब मुझे दे दो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, Ansh Agarwal has already given the answer, that is 40/7.
Okay, Aditya Madhu says backward. Left, back. चलो ठीक है. I think there is almost a unanimity in this. तो friction हो गया back. तो मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूं. P2 minus F is equal to M into fill in the blanks. यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, सबने बैकवर्ड बोल दिया. श्रेयसी, अंश, हर्षित, स्नेहा अग्रवाल, आदित्य माथुर, ऑल आर राइट. अब यहाँ पे बता दो यहाँ पे क्या होना चाहिए. ओके, ऋषभ जैन A/2, अंश अग्रवाल 2R into 2 अल्फा. ओके, और कोई आंसर? अभी 2 ही आंसर दिए. ओके, जसराज से 3A/2. ओके, कृष्णागर A. अंश अग्रवाल से आई थॉट टॉर्क इक्वेशन. नहीं, टॉर्क इक्वेशन नहीं. P2 minus F is equal to M into इसका इक्वेशन लिखना. ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा हूं. ओके, देहम says A/2, अंश अग्रवाल says 2A, देव says A, हर्षित लोहानी A/2. Okay, fine. Now let me give the answer. Garmakkar A/2, Sayyad A/2, Parth Bansal A/2A. Only 2 answers are correct. One is from Parth Bansal and the other is from Ansh Agarwal, and that is this will be 2A. Now you might say ये आपने कैसे निकाल दिया? ये जो है आपने कैसे निकाल दिया, है ना? तो देखो, ये वाला पॉइंट अगर A से जा रहा होगा तो ये वाला पॉइंट भी A से जा रहा होगा. तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है. तो देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका भी A होगा. पर ये कौन सा पॉइंट है जरा ध्यान से देखो. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो देखो जरा क्या हो रहा है. ये तो रेस्ट पे होगा क्योंकि प्योर रोलिंग है, विदाउट स्लिपिंग है. तो वेलोसिटी प्रोफाइल, एक्सेलरेशन प्रोफाइल याद है ना बनाने का तरीका. तो अगर ऐसे बनाता हूं तो ये होगा ए होगा. तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2A. इनफैक्ट अगर ऊपर कनेक्टेड होता यहाँ पे वो होता 4A. अगर यहाँ पे कनेक्टेड होता तो होता 3A. तो दैट इज व्हाट द कैलकुलेशन इज. यही छोटे छोटे इश्यूज है जो कि तुमको सीखना है. अदरवाइज देखना इन सब क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट रूटीन ही हो गया, है ना. तो A, 2A, 3A, 4A. मैंने इस क्वेश्चन में थ्रेड को यहाँ पे जोड़ा. यही थ्रेड अगर ऊपर लगाए होते लेट्स से किसी और क्वेश्चन में, तो इन दैट केस दिस वुड हैव बिकम 3A. बट अभी फिलहाल क्या है ना, सॉरी, इन दैट केस हो जाता 2/3, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 होता और सेंटर मास का क्या होता है 2/3. लेकिन इस बार क्या हो गया, इसका A है तो सेंटर का क्या हो गया 2A, यानी यहाँ पे 2A आ गया. अब देखते हैं जरा अननोन्स क्या क्या है. अननोन्स है एक तो T1, T2, F और A. यानी एक इक्वेशन और चाहिए और वो आएगा ऑब्वियसली टॉर्क के इक्वेशन, है या नहीं. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं. इस बार अगर तुम सेंटर ऑफ मास का वो टॉर्क लेते हो, इन दैट केस दो टॉर्क आएंगे. एक टेंशन का भी आएगा T2 का और एक इसका भी आएगा, दैट इज फ्रिक्शन का. इसलिए याद करके देखो, मैं बार बार एम्फसाइज करता था इवन बिफोर द ब्रेक आल्सो कि अगर टॉर्क का इक्वेशन लिखना है इजीली, इन दैट केस IAOR के अबाउट लिखो. हमेशा देखना क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व है या नहीं. तो देखो, लेट्स राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट दिस. तो क्या टॉर्क आएगा? एक ही तो टॉर्क आएगा और तो टॉर्क ही नहीं है. कौन सा है? T2. So therefore the last equation will be T2 into R is equal to T2 into R will be equal to I बोलते M R square by 2, है नहीं, प्लस M अभी बताओ अल्फा के जगह क्या लिखा जाए, क्योंकि अल्फा लिखूंगा तो एक और वेरिएबल आ जाएगा. तो अल्फा के जगह क्या लिखा जाए? यहाँ पे क्या रखोगे? इनटू ब्रैकेट. इसको फिलअप करो. अब इसको फिलअप करो जल्दी. यहाँ पे क्या लिखोगे? जल्दी बताओ.
fill up this bracket. Okay, Ansha Agarwal says A by R. Dhruv Sharma A by 2R. Deham says M into 2R square कैसे आया? अच्छा वो तो मैं समझा रहा हूँ, वो थोड़ा सा रुक जाओ, बताता हूँ. Om Pathak said A by R. Okay, देखो, याद करके देखो, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये अगर A होता है तो अल्फा क्या होता है? A by R. पर सेंटर वाला का A कहाँ है? इस बार तो 2A है बेटे, है ना? तो 2A है, लेकिन फिर डिवाइड किससे करोगे? 2R से. सो देयरफॉर A by R. यानी बहुत लोगों ने A by R आंसर दिया है, तो चलो मैं मान जाता हूं, लेकिन वो आया कैसे? तो वो आया है A by मतलब A by R ही होगा, बट कैसे आया? 2A by 2R. ये आ गया. अच्छा, नाउ दे हम इज आस्किंग कि ये ब्रैकेट कैसे आया. ना देखो, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m into r square by 2. लेकिन इस ऑब्जेक्ट का रेडियस r नहीं है, इसका 2r है. मैंने पहले ही बोला है हैंडल मासलेस है. ये देखो, मैंने पहले इंडिकेट कर रखा है. यानी जो भी मास है वो इस सॉलिड सिलेंडर का पार्ट है, और सॉलिड सिलेंडर का रेडियस r नहीं है, इस बार 2r है. लेकिन मैं तो टॉर्क लिख रहा हूं इस पॉइंट के अबाउट. तो यानी क्या हो गया? मैंने शिफ्टिंग भी कर रखा है. कितना शिफ्टिंग किया है? वो भी 2r है. तो देयरफॉर ये एक्सप्रेशन तो हो गया सेंटर मास वाला, और ये जो है m into 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया शिफ्टिंग वाला. तो उससे क्या हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ये वाला, इस एक्सिस के ऊपर. दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. इससे क्या हो जाता है देखो, ठीक है ना, T2 और A जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. चलो ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर A by R दिया. O Pathak, they all given the answer as A by R only. In fact इसके पहले ध्रुव शर्मा थोड़ा सा गलत हो गया, A by 2R होते, चेक कर लो. अब देहम बेटे समझ में आ गया वो टर्म कैसे है? देहम ब्रैकेट समझ में आ गया कैसे आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है, यस सर. ओके. चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड. अब तो आई थिंक सॉल्व हो गया, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस. 1 2 3 4, और हमारे पास 4 ही वेरिएबल. तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सॉल्व हो जाए. ओके. अच्छा, इसमें से एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन f का. ये f इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कल को एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द म्यू मिनिमम. तो म्यू मिनिमम के लिए क्या करेंगे? मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अभी तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करूंगा. ओनली थिंग इज दैट लेट अस हैव सॉल्व्ड ऑल द वेरिएबल्स. आई नो T1, आई नो T2, आई नो F, आई नो एवरीथिंग. T1 T2 F A सब पता है. ऐसे केस में यहाँ का म्यू मिनिमम कैसे आएगा? क्या होगा? सेट की जो पॉइंट स्ट्रिंग को टच कर रहा है उसका एक्सेलरेशन a है और रेडियस r है, तो भी चले एज यू विश. लेकिन क्या है ना कि देखो, तुमने जो कैलकुलेशन बताया वो अगर उससे करना चाहते हो वो थोड़ा अलग तरीका होगा. अगर तुम इस पॉइंट से एनालाइज करना चाहते हो तो पता है क्या तरीका होगा, मैं बता दूंगा. मैंने यहाँ पे 2A by 2R लिखा था. ये कैसे लिखा था? मैंने इस पॉइंट को एनालाइज किया था. बट अगर मान लो तुमको नहीं, मैं तो इस पॉइंट को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो भी कंक्लूजन सेम आएगा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा. पता है क्या तरीका होगा? फिर तरीका होगा, अगर इस पॉइंट के अबाउट लिखते हो, इस पॉइंट को फोकस में रखते हुए लिखोगे, इन दैट केस पता है कैसे होगा? 2A minus alpha is equal, ये इसका तरीका होगा. समझ रहे ना? क्योंकि याद रखना, ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे नहीं है, ये पॉइंट मूविंग पॉइंट है. इसका एक्सेलरेशन a है. सो देयरफॉर इट विल कम इन द सेम वे. आंसर भी वही आएगा ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा तरीका अलग. मैंने जो 2A by 2R लिखा था वो मैंने इस पॉइंट पे और लिखा था. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है पहले भी कि अगर सेंटर का एक्सेलरेशन a है, रेडियस r है, तो अल्फा होता है a by r फॉर प्योर रोटेशन. बस मैंने क्या किया,
मैंने a के जगह कर दिया 2a और r के जगह कर दिया था 2r. So therefore, if you want to find out alpha by taking this point, then this is the calculation 2a by 2r. If you want to find out alpha by using this point, तो फिर उसका calculation का method थोड़ा सा अलग. Ultimately आंसर तो सेम ही आएगा. Obviously आंसर दो अलग अलग थोड़ी आएगा, है या नहीं? हाँ, तो म्यू मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन क्या करेंगे? ओम पार्टिकल सेट की फिर एक काम करते हैं, टॉर्क लेके करते हैं. नहीं, मैं करूँ कि लेटर से मैंने T1, T2, F और A निकाल चुका हूँ. अब मैं दोबारा क्यों टॉर्क का इक्वेशन लिखूं? क्या फायदा है या नहीं? तो इसलिए अगर म्यू मिनिमम अब चाहिए तो पता क्या होगा? वो होगा फ्रिक्शन F by ये होगा म्यू मिनिमम एट दिस सरफेस. ठीक है, देख लो अच्छे से. ये हो जाएगा म्यू मिनिमम एट दिस सरफेस. तो F तो निकल चुका, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, और वहां पे नॉर्मल एक्शन क्या होगा? mg. तो म्यू n इज इक्वल टू F फ्रिक्शन. तो म्यू क्या होगा? फ्रिक्शन बाय n. n क्या है इसमें? mg. तो mg लिख दिया मैंने. बट इससे एक बेटर क्वेश्चन का आंसर दो, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड आउट म्यू मिनिमम आउट हियर. इसका म्यू मिनिमम कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए? क्यों? क्योंकि पुली भी तो रोल कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि रोटेट कर रहा है, और साथ साथ चल रहा है थ्रेड के साथ साथ विदाउट स्लिपिंग. तो ऐसे केस में हाउ टू फाइंड आउट द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड, हाउ टू फाइंड आउट द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड ऑन दिस व्हील, वो कैसे करोगे? सोम सेज की म्यू मिनिमम एक बार और बता दो. देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं ही कह रहा हूँ कि देखो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन. मतलब इस वाले ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन. अब एन क्या है? mg. यानी म्यू mg इज इक्वल टू f. तो अब तुम इस इक्वेशन में तो f सॉल्व कर चुके हो, तो म्यू mg इज इक्वल टू उस f की वैल्यू पुट कर दो. तो दैट इज द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड. नहीं तो क्या होगा? ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं करेंगे, नहीं तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, और स्लिपिंग होते ही देखना कैलकुलेशंस काफी अलग हो जाएंगे. बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट. मेरा मेन इशू नाउ इज दैट is to find out what is the mu minimum required in this particular case. Go ahead. How to find out the mu minimum out here? Ansh Agarwal is given कि T2 is equal to T1 into कुछ to the power mu बोल रहे हो. थोड़ा सा ठीक करो इस एक्सप्रेशन को. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अंश अग्रवाल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. थोड़ा सा और करेक्ट करो. यू आर अगेन ऑन द राइट ट्रैक. यू आर गिविंग द आंसर एज T2 is equal to T1 into e to the power mu. थोड़ा सा ठीक करो. सोम, यू आर राइट. आर्यन जैन ने अब उसी अंश अग्रवाल के आंसर को ठीक कर दिया. चलो ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड. यानी अब पता क्या आ रहा है? अगर तुमको यहाँ का मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए, I am assuming that T1 and T2 has already been found out. T1 and T2 has already been found out. Therefore, I'm going to use this equation. T1 is equal to T2 into e to the power mu minimum into pi by 2. ठीक है? अब एक काम करो, T1 by T2 कर लो और दोनों तरफ log ले लो. तो दोनों तरफ log ले लोगे तो क्या हो जाएगा? mu minimum into pi by 2 is equal to ln T2 by T2. दोनों तरफ log लोगे तो यही आएगा. Therefore, mu minimum कितना आ जाएगा? equal to 2 by pi ln T1 by T2. ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 by pi ln T1 by T2. ठीक है? Now you might say pi by 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना, ये यहाँ से आता है. अगर इसको थोड़ा बड़ा करके बनाओगे तो देखो ऐसे हो, ये थ्रेड यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है. तो देखो the theta that is there is what is the angle covered, और जो कि इस केस में क्या होगा? pi by 2. So therefore I use pi by 2. pi by 2. I hope you are getting. भव्य says कि ये क्यों आया?
उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर वापस जाना पड़ेगा। मैंने एक क्लास लिया था, अगर याद करके देखो, एलिमेंटल एनालिसिस नाम के क्लास लिया था, और उसमें मैंने समझाया था कि कैसे टेंशन वेरी करता है इन अ थ्रेड which is being wound over a circular object like a pulley, disc, ring or some such thing. तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस करके बताया था कि टेंशन कैसे आपस में रिलेटेड है। So that relation was this one. वो actually relation था T2 is equal to ये relation T1 is equal to T2 into e to the power mu theta, या तो T2 is equal to T1 into e to the power mu theta, डिपेंड करता है कि कौन सा साइड पे T1 ले रहे हो, कौन सा साइड T2 ले रहे हो। थीटा क्या है? थीटा is the angle by which the thread has been wound around that circular object. ठीक है, that was what it was. But is it okay now? चलो, I think Ansh, Deham, Som were on the right track giving the answer. चलो ठीक है. Okay, Deham has asked an interesting question that ये T1 और T2 कौन से साइड में, ये कैसे पता चलेगा? चलो, गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का हमेशा पूछ लिया था, क्योंकि अदरवाइज ना एग्जाम में अटक जाते हैं हम. देखो, तो ध्यान से सुनना. सपोज ये थ्रेड, तो ध्यान से सुनना इसका कंसेप्ट. अगर ये थ्रेड क्लॉकवाइज पुली के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज पुली के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली उससे अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले क्लॉकवाइज में सीख लो, एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा कर देना. सो सिंपल. तो लेट अस से दैट थ्रेड इज हैविंग ओमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पुली. अगर ऐसे है, in that case obviously क्या होगा? T1 ज्यादा होगा T2 से, है या नहीं? तो in that case relationship होगा T1 is equal to T2 into where theta is this angle. And it's not necessary it has to be 90 degree. I mean, चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, बल्कि 90 डिग्री बनाता हूँ, नहीं तो बायस होगा. ये T2 और ये हो गया, और 90 डिग्री हटा दिया. तो T1 is equal to T2 into e to the power mu theta. तो look at here, अगर ये पुली के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूम रहा है स्ट्रिंग यहाँ पे, तो इन दैट केस इसको अगर T1 और T2 बोलते हो तो ये रिलेशन है. ऑब्वियसली फिर अब इसको उल्टा कर लो. ये अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है विद रेस्पेक्ट टू पुली, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इन दैट केस इसको T2 बना दो, इसको T1 बना दो. सो सिंपल, है नहीं? T1 T2 कैन बी इंटरचेंज्ड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया कि T1 किसको लेना होता है और T2 किसको लेना होता है, और इक्वेशन में लेफ्ट और राइट में किसको डालना. आई होप नाउ आई मेड माय सेल्फ क्लियर. देहम, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चलो ठीक है, गुड, आ गया समझ. चलो गुड. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी पुली के ऊपर ही है, थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान से देखो. मैं इसको पहले 3D फिगर बनाता हूं. And it's a pretty tough diagram, I know, to draw a 3D diagram, but let me try. Again, we are going to assume that the handles are massless. एक सेकंड, थोड़ा सा ना ट्विस्ट करना. Handles are massless.
तो अब मैं इसका ये तो इसका 3D व्यू, पर 3D व्यू से उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसका साइड व्यू भी बना रहा हूँ। ध्यान से देखो साइड व्यू। ठीक है, but you know what, this will be a little tougher question than काम करूँ मैं इससे थोड़ा simpler question पहले देता, एक simpler question पहले देता हूँ, फिर इसको target कर, ठीक है? The simpler question is like this: that suppose I have a solid cylinder like this and a thread which is having a mass like this. This is a little easier. Aryan has asked if there is no slipping, why is there relative omega? हाँ, मैं इसी पे आना चाह रहा था, चलो चलो अच्छा हुआ पूछ लिया। अब सुनो, अगर स्लिपिंग हो रहा है तो वो इक्वेशन है T2 और T1 और वो वाला, लेकिन वो इक्वेशन तभी भी तो यूज कर सकते हो जब ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, बिकॉज इट्स अ वेरी थिन बाउंड्री बिटवीन ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग एंड एक्चुअल स्लिपिंग। और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बराबर है। आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो पिछले क्वेश्चन में ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग में जो म्यू होगा और जो स्लिप कर जाएगा जो म्यू होगा उसको बराबर कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो दैट इज द मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। अगर उससे ज्यादा फ्रिक्शन होगा उस पुली पे और थ्रेड के बीच में, इन दैट केस स्लिपिंग होगा ही नहीं। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस। ये जो क्वेश्चन है इसका 3D फिगर भी मैं बना देता हूं कुछ ऐसे। This is a 3D view and this is the side view. Question is, find out the acceleration of each. Find out the acceleration of each. Aryan bete, are you okay with the question that I just answered? Okay, चलो ठीक। What your point? इस पे एक्सेलरेशन निकालना ऐसा है ना, देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इजी बना दिया इन द सेंस कि मैंने मासेस वगैरह अच्छा दे दिया, ये भी एम है, ये भी एम है, रेडियस आर है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको ना कंप्लीटली सॉल्व कर। लेट्स सी द एक्सपीरियंस। कंप्लीटली सॉल्व करो, लेट्स सी द एक्सपीरियंस। तो एक चीज मुझे बता दो कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए होता है तो इसका कितना होगा? सबसे पहले इसका जवाब दो। वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप। अगर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन ए होता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, द फॉर्चुनेट पार्ट इज दैट एवरीबडी इज राइट। इंटरेस्टिंगली एवरीबडी इज राइट। ठीक है ना? The point is that if they are going together, then that case अगर इसका A होगा तो इसका क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। क्यों? Therefore यहाँ पे जो होगा वो होगा अल्फा और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा इंटू 2r, because it is 2r distance away। तो इसलिए अगर इसका A होगा तो इसका 2A होगा। चलो गुड, ठीक है, go ahead। और ऋषभ जैन से इसकी आपकी वॉइस बहुत अटक रहा है। अच्छा वीडियो। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द इक्वेशंस। तो ऑब्वियसली इसका अगर T1 होगा ये हो जाएगा T2,
तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा, T2 प्लस mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। आई थिंक दैट्स ओके। इसका क्या हो जाएगा, mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू 2a, है ना। तीन अननोन है, a, T1, T2, तीन में से दो इक्वेशन आ चुका है। अब तीसरा इक्वेशन क्या होगा ना, रोटेशन का लिख लेते हैं। रोटेशन में सेंटर मास भी चलेगा अगर चाहते हो तो, और नहीं तो इससे भी कर सकते हो। तो मैंने पहले ही बोला IAOR इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। तो चलो वही करते हैं, इस पॉइंट का वर्ड ले लेते हैं। इन दैट केस क्या होगा, mg into r प्लस T2 into 2r इज इक्वल टू, यहाँ क्या अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 और शिफ्ट mr स्क्वायर, तो 3/2 mr स्क्वायर, तो 3/2 mr स्क्वायर इनटू a/r। ये हो गए इक्वेशंस, तीनों हो गए, इतना ही चाहिए, a, T1, T2, और तो कुछ इक्वेशन नहीं थी। तो अब इसे इसको सॉल्व करना पड़ा, तो मे बी इसको r हटा देता हूं, तो हो जाएगा mg प्लस 2T2 इज इक्वल टू, r हट जाएगा, इधर भी एक r हट जाएगा, तो लाइक ये बन जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब सॉल्व करो इसको। तो maybe what I can do is that I can just double this, तो हो जाएगा 3mg, ये 4ma, 4 plus 3/2, that is 5.5। then a आ जाएगा is equal to, ठीक है, 2 और 1 3, 5.5 मतलब 11/2, 6 by 11। आ गया ना, सॉल्व हो गया। अब एक काम करो, अब एक चीज मुझे बताओ, इज दिस आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? ओके, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, तुम बोलोगे अरे आप ही ने इक्वेशन बनाया और सॉल्व हो गया। अब इसमें करेक्ट इनकरेक्ट का हमने एनालाइज किया, हमने आज तक नहीं किया। भाई हमने अगर करेक्ट तरीके से इक्वेशन बनाया तो करेक्ट आंसर ही आएगा। इसमें आंसर को हम क्यों चैलेंज कर रहे हैं आज? बड़ी तो पहली बार चैलेंज कर रहे हैं आंसर को। देखो आंसर ये जो 60/11 आया है उसके कई कंसीक्वेंसेस है। अंश अग्रवाल ने एक कंसीक्वेंस अभी भी रेज किया है। देहम इज सेइंग कि फॉर ब्लॉक 2 इट विल बिकम 12g/11। तो देहम बताओ उसमें दिक्कत क्या है? यस देहम क्विकली। अंश अग्रवाल ने एकदम करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एंड दैट इज T2 विल बिकम नेगेटिव। एक काम करो, ये जो A आया है ना, इसको यहां पुट कर लो, इसको यहां पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 12g/11। इसको इधर लेके आओ, T2 इधर लेके जाओ, तो देखना इसके मतलब ये हुआ T2 इज टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव। T2 का वैल्यू चेक करके देखो नेगेटिव आ रहा है, दैट्स इश्यू नंबर 1। नंबर 2, सेकंड इश्यू, अगर इसका एक्सेलरेशन 6g/11 होता है तब तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस 6g/11 क्या हो जाएगा? 12g/11। क्यों? क्योंकि अगर एक का A होता है दूसरे का 2A लिया मैंने। पर एक चीज बताओ, एक बॉडी जिसके साथ सिर्फ थ्रेड कनेक्टेड है, वो भी ऊपर से, नीचे से कनेक्टेड हो तो अलग बात है। नीचे से तुम एक ऑब्जेक्ट को खींच के G से ज्यादा एक्सेलरेशन करा सकते हो, लेकिन ऊपर से थ्रेड को पुल करके कभी भी तुम G से ज्यादा एक्सेलरेशन तो नहीं करा सकते। हाँ, अगर रॉड होता तो हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से रॉड है, उसने धक्का मार के उसके एक्सेलरेशन G से ज्यादा करा है, ये हो सकता है, लेकिन थ्रेड के कारण नहीं हो पाएगा। देयरफॉर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ तो गलती। बोला अरे बाप रे, इतना मेहनत करा और फिर काट दिया। अब क्या करें, गलत आंसर आ रहा है तो क्या करें? अब बताओ इसमें करेक्शन क्या करें, और करेक्शन का जरूरत क्यों होगा वो तो समझ में आ गया होगा। करेक्शन क्या करें और इसमें गलती क्या हो रहा है, व्हाट रॉन्ग हैव वी डन?
In this case, try to imagine and try to inform. क्या गलती हो रहा है बताओ? जसराज also says the same thing and that is g से ज्यादा acceleration नहीं हो सकती है. बिल्कुल सही बात बोला. यानी इससे कंक्लूड क्या करोगे? कंक्लूड ये कर रहा हूं मैं कि अगर ये कनेक्टेड है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर ये कनेक्टेड है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, इन दैट केस क्या होगा ना, इसका एक्सेलरेशन मोर देन जी होना पड़ेगा, यानी फ्री फॉल से ज्यादा होना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो अभी बताओ ये कौन सा चीज पॉसिबल नहीं हुआ? फ्री फॉल से ज्यादा पॉसिबल नहीं हुआ. फ्री फॉल से ज्यादा क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने इसको कनेक्टेड माना है. अगर कनेक्टेड है तो इसको फ्री फॉल से ज्यादा करना पड़ेगा, और ये फ्री फॉल नहीं कर सकता है, यानी अब हमें सोर्स पे क्वेश्चन करना पड़ेगा. हमने जो assumption किया ना ये कनेक्टेड चल रहा है, वही assumption में गलती हुआ, उसी assumption में गलती हुई, वही गलत assumption था. That means they are going to move separately. ये अलग मूव करेंगे, ये अलग मूव करेंगे. अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, और एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो. तो पता चलेगा गलत है तो उसमें मिटाने में कोई दिक्कत नहीं. इसका एक्सेलरेशन निकालो, सॉलिड सिलेंडर, इसका एक्सेलरेशन निकालो. अंशेष की स्लिपिंग होगा. चलो देखो, जब थ्रेड लूज हो जाता है तो उसको हम स्लिपिंग के टर्मिनोलॉजी में नहीं ले जाना चाहेंगे, इसलिए स्लिपिंग विल नॉट बी वेरी करेक्ट वर्ड, बट यस कनेक्टेड तो नहीं होगा, इतना तो पता चल गया. लेकिन कनेक्टेड क्यों नहीं हो रहा है? हमने तो कनेक्ट किया हुआ है. नाउ दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. कनेक्टेड क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका जवाब तब मिलेगा जब हम इसको आइसोलेटेड स्टडी करेंगे. तो एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो आइसोलेटेड मानते हो, यानी जब कोई मास लटका हुआ नहीं है, इसके साथ ये जो मास लटका हुआ ना वो नहीं रखा है, वो हटा दिया. अब इसका एक्सेलरेशन निकालो फटाफट. तो क्या करें उसके लिए पता है बेस्ट तरीका क्या है? इसी के अबाउट निकाल लो. क्यों? क्योंकि टेंशन का टॉर्क खत्म, एक ही टॉर्क रहेगा mg, है ना. और देखना एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे? mg into r, that's the torque about the IAOR. इसको मैं IAOR मान रहा हूं. इज इक्वल टू I अल्फा, I बोलते क्या होगा mr square by 2 plus mr square into 3 by 2 mr square. I hope you're getting it. 3 by 2 mr square into अल्फा, अल्फा बोलते क्या होगा a by r, यानी a by r. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे AR, ये कितना आ गया? 2g by 3. बिल्कुल सही. Just Raj has given the right answer and that is 2 by 3 g is the acceleration of the center of mass. यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर? इस पॉइंट का उसका डबल, यानी ये जो पॉइंट है ये 4 by 3 g से नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट. प्राइमरी से अभी तो आप कह रहे थे कि ये फ्री फॉल से ज्यादा हो नहीं सकता है. फ्री फॉल से ज्यादा एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं हो सकता है. कोई घूमता हुआ अगर ऑब्जेक्ट है तो वो तो अगर उसको फ्री फॉल ना भी करो, उसको अगर एक पिन से जोड़ दो तो भी तो उसके एक्सेलरेशन मोर देन g हो सकता है, वो कहानी अलग है. तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 2 by 3 g आ रहा है, और ये जो पेरिफेरी है उसका 4 by 3 g. यानी अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट भी करूंगा मास से, तो देखो ये पॉइंट जा रहा है 4 by 3 g, ये पॉइंट तो 4 by 3 से g से जा नहीं पाएगा. तो यानी क्या होगा, जैसे इस सिस्टम को रिलीज करोगे ना तो पता है क्या होगा, ये अपना 2 by 3 g से नीचे आना शुरू कर देगा और ये थ्रेड लूज हो जाएगा. यानी अब हम अगर पिछले क्वेश्चन में जाते हैं, दैट केस क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये सिचुएशन. दिस थ्रेड विल इमीडिएटली बिकम लूज, ये वाला. और उससे क्या होगा ना, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 by 3 g और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और इसका टेंजेंट t2 हो जाएगा 0 और t1 कितना आएगा? mg by 3. तो देयरफॉर ये जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आंसर निकाला था वो गलत था, और अब जाके ये आंसर सही हुआ है. नाउ यू माइट से कि इसके मतलब ये तो बड़ा रिस्की चीज है, हम अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करें तो भी हम अपने आंसर को खुद भरोसा नहीं कर सकते. ये तो सिचुएशन ऐसे ही निकल गया. तो देखो, दो बॉडीज जस्ट क्योंकि तुमने छोड़ दिया है तो वो कनेक्टेड तरीके से चलेंगे, इसका गारंटी कहां से आएगा? वो तो हमने पहले ही प्रिज्यूम कर लिया कि कनेक्टेड तरीके से जा रहा है, और गलती वहीं पे.
यानी एक मौका या स्कोप इस बात के लिए छोड़ देना कि अगर तुमने बॉडीज को छोड़ भी दिया है, प्रिज्यूमिंग इट टू बी कनेक्टेड, डोंट presume it as 100% sure that it will be connected. Are you getting it? तो therefore अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको थोड़ा चेक भी कर लो कि कहीं टेंशन नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, कहीं फ्री फॉल से ज्यादा एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा है, तब जाके हम इस बात पे एश्योरेंस या श्योरिटी ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो therefore now I hope you got the answer, but don't think कि ये हमेशा होगा. Okay, Garmakar, you are right. Deham is saying कि सर पहले भी तो a is equal to 60/11 आया था less than g. हाँ बिल्कुल सही बात है. Deham, you are right. But the thing is that am I looking at one body's acceleration or both bodies? तो पहले वाले बॉडी पे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था. मैं तो दूसरे वाले बॉडी पे आपत्ति उठाते कि भाई ये तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता 6g/11, ये तो डबल होगा. तो डबल का मतलब 12g/11. अब ये इम्पॉसिबल केस में चला गया, ये चीज से ज्यादा इस बार भी तो डबल 4g/3 आया है, वो भी g से ज्यादा है. हाँ लेकिन ये एक पॉइंट का है बेटे, ये सेंटर मास का नहीं है. जब मैं कह रहा हूं ना कि एक बॉडी फ्री फॉल में g से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली किस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ओनली सेंटर मास. वैसे एक चीज लॉजिकली देखो, थोड़ा सोच के देखो लॉजिकली. सपोज एक बॉडी को तुमने यूं रिलीज कर दिया, ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, तो वो बॉडी ऐसे गिरेगी, हर पॉइंट जी से गिरेगी, है या नहीं. लेकिन अगर वापस बॉडी को ऐसे स्पिन कर दो, है या नहीं, तो इन दैट केस देखो जो ऊपर वाले पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ओमेगा स्क्वायर आर. और ऊपर से तो किसी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं. इनफैक्ट इसके लिए रोटेशन का जरूरत नहीं है. इसके लिए तो तुम और भी केस सोच सकते हो. जैसे सपोज मैं एक टेबल से छलांग लगाता हूं, तो अगर मान लो मैं ऐसे रिजिड होके ऐसी टेबल से जंप कर जाता हूं, तो दैट केस पूरा बॉडी जी से गिर रहा है. आई थिंक दैट्स सिंपल. बट मान लो मैंने टेबल से जंप किया और अपने हाथ को यहां से यहां कर दिया, उसी टाइम यहां से यहां, मेरे हाथ का एडिशनल एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड्स, यहां से ऊपर, ऊपर से नीचे कर रहे हो. तो देयरफॉर उस हाथ के उस टाइम पे एक्सेलरेशन मोर देन जी हो सकता है, नो इश्यूज. इसलिए किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो रहा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं. पर सेंटर मास के एक्सेलरेशन जी से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, किसी और पॉइंट पे नहीं. ये ध्यान रखना, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और अगर इस पे कोई डिबेट है तो अभी पूछ सकते हो. चलो ठीक है. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा. जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया, जरा इस पे ध्यान दिया जाए, क्या इसमें भी ऐसे होगा, देखते हैं. Who knows? तो अगेन मैं हैंडल को मासलेस मान के चल रहा हूं. अब ये आर रेडियस है और ये सपोज है, ये एक नाम करो, ठीक है, ये आर रेडियस है और मान लो ये 2r और ये m है और ये भी m, ठीक है. अब बताओ इसके एक्सेलरेशन फ्री फॉल होगा या कनेक्टेड होके चलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन. उसके लिए एक तरीका है. उसके लिए एक तरीका क्या है कि थोड़ी देर के लिए इसको हटा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन निकाल लो. अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा आता है तो यानी दोनों बॉडीज कनेक्टेड नहीं चलेंगे, दोनों बॉडीज अलग चलेंगे. आई होप यू हैव नॉट गॉट द पॉइंट कि मैं क्या अप्रोच करने के लिए कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हटा दो, चेक करो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है. और वो बहुत आसान टास्क है. क्यों? वो तो एक लाइन का टास्क है. पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक लाइन में आंसर आ गया था. क्यों? क्योंकि हम तो इसके अबाउट लिखेंगे इक्वेशन, ये दिखाएंगे ये वाला IOR. तो क्या हो जाएगा, mg into r, ये r है, इज इक्वल टू I बोलते क्या होगा, m into 2r का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस m into r स्क्वायर. ये 2r क्योंकि मैंने पहले बोला कि हैंडल मासलेस है, ये डिस्क 2r रेडियस का या सॉलिड सिलेंडर 2r रेडियस का, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो m r स्क्वायर बाय 2, r मतलब 2r हो गया इस केस में क्योंकि उसका डायमेंशन 2r, प्लस शिफ्टिंग कितना होगा, mr स्क्वायर इनटू अल्फा tau is equal to I अल्फा. याद रखना मैंने IAOR के अबाउट इक्वेशन लिखा है. अल्फा क्या हो जाएगा इनटू अल्फा. इसको क्या लिखे,
जल्दी बोलो। ये इसका अल्फा क्या होगा? ठीक है, ए बाई आर बिल्कुल सही, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए है, ये रेस्ट पे है, तो इसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा हो गया ए बाई आर, बिल्कुल सही, यानी ए बाई आर। या तो ये कितना आ रहा है ना, 2r² और दैट इज 4m, ठीक है ना, 4/2 3r, यानी a इज इक्वल टू आ रहा है इक्वल टू g/3, am I right? तो चेक कर लो। g/3 आ रहा है, ठीक है। अगर इसका g/3 आता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? r r r, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? gr, 3 टाइम्स, यानी इस बार भी इफेक्टिवली दोनों बॉडीज कनेक्टेड नहीं रहेंगे। आई होप दैट इज ओके। यानी इस बार भी क्या हो रहा है? सो देयरफॉर पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्या आ रहा है? g। सो अगेन द बॉडीज मूव effectively, bodies move separate, ये फाइनल कंक्लूजन आ रहा है, यानी इफेक्टिवली बॉडीज फाइनली सेपरेटली मूव कर रहे हैं। आ गया? ओके, वन लास्ट चेंज, आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी फाइनली क्या होगा ना, इसका एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा जो है g/3, तो g/3 यहाँ का टेंशन 0 हो जाएगा, और ये जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन c हो जाएगा, और जो ये टेंशन होगा ये हो जाएगा 2mg/3, ठीक है। आई थिंक नाउ ऑल आर सेट। ये वाला टेंशन 0, ये वाला एक्सेलरेशन g, इसके सेंटर का एक्सेलरेशन g/3, और ये टेंशन कितना हो गया? 2mg/3। आई होप ऑल थिंग्स आर सेट। अब एक लास्ट चेंज है, एंड दैट इज इसको कर दो 2r, सॉरी 4r, और इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करो, फिर से चेक करो कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। अगेन आईओआर के अबाउट इक्वेशन लिखेंगे, तो आईओआर के अबाउट इक्वेशन क्या हो जाएगा? mg into r, है ना, ये तो r ही रखा, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? m 4r होल स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर इनटू a बाय r, यानी ये कितना आ रहा है? 16/2 8 और 1 9, यानी a इज इक्वल टू अब आ गया g/9। अब बताओ एक साथ चलेंगे, यानी विल दे गो कनेक्टेड और विल इट बी सेपरेट मोशन, इंडिपेंडेंट या कनेक्टेड? अब बताओ इंडिपेंडेंट है या कनेक्टेड है? 2g/9, नहीं g/9 है बेटे, 2g/9 नहीं, जसराज g/9 होगा। Now you are right. सोम, क्रिश, अंश सबने करेक्ट आंसर दे दिया, एंड दैट इज इस बार जाके फाइनली कनेक्टेड होके बॉडीज चलेंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन g/9 आया, ये सेंटर का, तो ये हो जाएगा r, है ना, और ये 4r, ये 4r, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P कितना हो गया? फटाफट बताओ जरा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, देहम यू आर राइट, सोम थोड़ा सा गलती कर रहे हो, देहम यू आर राइट, एंड दैट इज 5g/9। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस लेते हो, तो ये जो पॉइंट है ना, ये r और 4r यानी 5r डिस्टेंस दूर है, तो 5 टाइम्स होगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज 5g/9, so therefore they move together, यानी इस बार इंडिपेंडेंटली मूवमेंट नहीं हो रहा, वंस कनेक्टेड टुगेदर, वंस कनेक्टेड। अभी तो मैंने कनेक्ट नहीं किया है,
अभी तो मैंने इसको कनेक्ट ही नहीं किया, तब जाके इसका मोशन एनालाइज कर रहा हूँ। अब जब कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आंसर थोड़ा अलग आए, ऑब्वियस है या नहीं? बट जो भी होगा कम से कम दोनों एक साथ चलेंगे, और ये जो टेंशन अब आएगा ये वाला, ये अब नॉन जीरो आएगा। आई होप यू आर गेटिंग ईच कंक्लूजन वन आफ्टर द अदर लॉजिकली। चलो एक काम करो, फाइनली फिर एक काम करो, इसको हटा देता हूं मैं। आई होप यू हैव कॉपीड इट। एक काम करो, अब इस एंड को जोड़ लो और जोड़ के करो जरा। अब इसकी इक्वेशन लिखो फटाफट। इसको T1 ले लेना, इसको T। तो पहला इक्वेशन लिख लेता हूं, mg प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m, और इसका इक्वल हो जाएगा mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू 5, है ना? वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था। R और 4 R तो 5 R, ये हो गया 5, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन I और R के अबाउट, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा T2 इंटू 5R प्लस mgr इज इक्वल टू, अब सीधे लिख देता हूं, m इंटू 4r स्क्वायर बाई 2 दैट इज 8mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 9। That's the equations. देव आज की, इसके पहले आपने किसकी इक्वेशन लिखा थे? इसके पहले मैंने लिखा था जब ये बॉडी कनेक्टेड नहीं था, ये अकेले बॉडी था, उस समय का इक्वेशन लिखा था। इसके ठीक पहले वो मैंने मिटा दिया, क्योंकि मैंने कंक्लूड कर लिया कि इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो फ्री फॉल से कम आ रहा है। यानी अब जब तुम बॉडी को हैंग करोगे वहां से, तो वो कनेक्टेड चलेंगे, इट विल एक्चुअली गो कनेक्टेड, ठीक है ना? दैट्स द कंक्लूजन। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट। अब इसको तो सिंपलीफाई कर लिया जाए, क्योंकि तो r से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5t2 प्लस mg इज इक्वल टू r से कैंसिल कर दो 9। वैसे एक काम करो, इसको भी 5t2 कर लो, यानी 5t2 5mg प्लस 6mg, ये खत्म हो जाएगा, 5 टाइम्स 25 प्लस 9 यानी 34 और 6 यानी 3/17 आ रहा है। तो चेक करो जरा, तो चेक करो जरा, ये आ रहा है क्या? एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने कुछ ज्यादा जल्दबाजी में कैलकुलेशन कर लिया। आई ठीक है, 6 हो गए। ओके, अभी तक किसने आंसर तो दिया नहीं है। इन द मीनवाइल इसको चेक करो, इसका अगर 3/17g होता है तो इसका कितना हो जाएगा, है ना? यानी स्मॉल m का, तो इसका हो जाएगा क्या ना, 5 टाइम्स a और 4a, तो यानी 5a हो गया, मतलब 5 टाइम्स है, तो इसका एक्सेलरेशन 5 टाइम्स यानी 15/17g। इसका और उससे T2 भी आ गया, T2 क्या आएगा 2/17 mg, ठीक है। कितना भी और राइट, ये एक्सेलरेशन आ गया, इसका देखो 15/17 वही आ रहा, और इसका टेंशन आ गया 2/17, देख रहे हो? अब टेंशन नेगेटिव नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो एक बार, अब फर्क पता चल गया ना, कि क्योंकि इस बार फ्री फॉल अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग चीज है, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग चीज देखो, इज दैट अब मान लो तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसको रखा नहीं, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आया था g/17, सॉरी g/9 आया था, g/9 सॉरी। यानी जब इस मास को हैंग नहीं किया था मैंने, उस समय इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम बोलते जब इसको मैंने नहीं रखा,
तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन आया था g/9। देखो प्रॉब्लम क्या ना, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि भाई साथ में जा भी रहा है या नहीं। नहीं तो क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखोगे और पता चला जा ही नहीं रहा है साथ में, तो सारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसलिए फटाफट IOR यूज करके इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया मैंने, वो आया था g/9। इसका एक फायदा है, ऐसे मत सोचो कि ये सिर्फ चेकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। इसका एक फायदा और है, पता क्या, कि देखो g/9 अगर इसका एक्सेलरेशन है, जब ये बॉडी रखा ही नहीं, अब जरा सोचो, जब ये बॉडी रखोगे तो ये भी तो नीचे खींच रहा होगा, है या नहीं? नीचे खींच रहा होगा, तो यानी क्या होगा ना, यहाँ पे एडिशनल फोर्स आ जाएगा, जिसके वजह से अगर इस पॉइंट का वो देखते हो तो पहले mg का टॉर्क था और अब इस टेंशन का भी टॉर्क होगा। यानी पिछले केस में जो अल्फा था, इस बार अल्फा ज्यादा होगा। यानी कुछ भी हो, इसका एक्सेलरेशन g/9 से तो ज्यादा ही होगा। अब देखो 4 ऑप्शंस होता है, थोड़ा सा लक फैक्टर की भी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 4 ऑप्शंस है, हो सकता है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें g/9 से ज्यादा आंसर है। यानी ऐसे मत सोचो कि ये जो चेकिंग वाला स्टेप है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं है, इसका हम ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले बार T2 था नहीं, जब मैंने इसको नहीं रखा था, तो टॉर्क बोलते पिछले बार ये g/9 आया था, इस बार डेफिनेटली g/9 से ज्यादा हो। तो अगर बाय चांस, बट that's why I was saying it's a little luck factor also, बाय चांस अगर एक ही ऑप्शन है जो कि g/9 से ज्यादा है, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो अब आगे सॉल्व करने जरूरत फिर तो करना पड़ेगा, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, तब तो करना पड़ेगा। पर एटलीस्ट व्हाई नॉट बी केयरफुल, कई बार ऐसे मिल जाता है रास्ता, थोड़ा सा लक फैक्टर है नो डाउट, बट देन कई बार ऐसा रास्ता मिल जाए तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पहुंचते डेढ़, इनफैक्ट शायद 2 मिनट लग जाए। तो अगर ऑब्जर्वेशन को ओपन रखो विंडो, तो इन दैट केस कभी कभी देखना 2-3 क्वेश्चन में 1.5-2 मिनट हमारा बच जाए। अब बताओ 3 क्वेश्चन में अगर 2 मिनट बचा तो 6 मिनट होता है। 6 मिनट में आई एम श्योर 2 एडिशनल क्वेश्चंस कर सकते इन एनी केस। और 2 एडिशनल क्वेश्चन का मतलब आज के दिन में 6 नंबर या तो 8 नंबर, और 6 नंबर में तो आजकल 100 हजारों में रैंक में पीछे हो जाता है, आगे हो जाता है। ईच थिंग इज ईच सेकंड इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स मिनट्स टू डिफरेंट। सो मैं सेट की एक बार लास्ट इक्वेशन समझा दे। लास्ट इक्वेशन, अच्छा ये वाला इक्वेशन एक्चुअली मैंने लिखा, हाँ इस पॉइंट तो ये टेंशन T2 है, ये R है, ये 4R है, तो यहां से आता कितना होगा 5R, तो T2 into 5R और एक mg into R, ये टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा तो A by R है, I की जगह मैंने क्या किया, m into 4R का होल स्क्वायर by 2, ये सेंटर मास क्या हुआ which is 8m R square, और फिर m into R square का शिफ्ट, ये हुआ R का शिफ्ट, और उससे क्या होगा, आ गया 9m R square, और फिर आ गया अपना A by R लिख दो अल्फा के लिए, that would help you in get the answer। ठीक है, चलो ठीक है। तो यानी आज के दिन में जो है हमने मेनली पुलिस के मोशन के ऊपर डिस्कस किया, और ये भी पता करने की कोशिश किया कि लाइक हाउ टू नो कि जो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। तो ऐसे ना हो कि पता चला जो है वी जंप टू द कंक्लूजन एज्यूमिंग कि शायद हम लोग राइट ट्रैक पे। यानी जस्ट बिकॉज यू एज्यूम दैट द बॉडीज आर कनेक्टेड डज नॉट नेसेसरीली मीन सो, तो वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे से इसको ध्यान रखना। ये टॉपिक अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, अभी 1-2 केस और है, जिसके बाद तब जाके देखना पुली, वर्टिकल मोशन, कनेक्टेड मोशन, डिस्कनेक्टेड मोशन, इस पूरे जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आइडिया बने। उसके बाद तो देखना तुम कोई भी बुक अटेम्प्ट करो, मटेरियल अटेम्प्ट करो, देखना इसके ऊपर कम से कम ना भी हो तो 15-20 क्वेश्चंस होंगे पूरे एक्सरसाइज, अलग अलग टाइप, कभी टेबल के ऊपर, कभी हैंगिंग, तो कभी कुछ, बट देन देखना वो सारे वही 2-3-4 टाइप के होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। 1-2 तो आज डिस्कस कर लिया, 1-2 कल डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ न्यू एरिया ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आफ्टर नॉट अ लॉन्ग ब्रेक, बट आफ्टर अ मीडियम ब्रेक, मीडियम शॉर्ट ब्रेक,
we are again on active mode, and as usual, today is Wednesday. Yeah, Wednesday. As usual, plan for what has to be covered this week, and so that in the weekend you know that this was my target and this is what I have achieved. ठीक है, चलो आज के लिए इतना बेटे, कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे. थैंक यू थैंक यू सर. आज आपने एक भी पोल नहीं कराया. आज एक्चुअली काफी दिन बाद स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा क्या चल, थोड़ा टॉपिक भी भारी था आज, इसलिए पोल करने का इतना मौका नहीं था, थोड़ा फ्लो में चला गया, बट कल पोल करते हैं. चलो.